اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان فإذا وعى السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد، علم و آگہی و بیداری اور تعلیم و تربیت اس درسگاہ روشنی علم کی میں آپ کا استقبال ہے. ہم یہاں پر علم، اصول تعلیم، اس کی جدید تقاضے، پل پل بدلتے ہوئے رنگ روپ، ان سب کے تعلق سے باتیں کرتے ہیں. ایسا ہی ایک موضوع ہے، اس کا نام ہے تجارت. تجارت یعنی بزنس. کہ یہ ہمارے نوجوانوں کا ایک موضوع ہے، ایک ٹاپک ہے. ہمارے لڑکے لوگ خاص طور پر جو ہیں وہ اپنی ماں باپ کو بیوقوف بناتے رہتے. امی کیا ہے الجبرا، جیومیٹری، جغرافی، فزکس، کیمسٹری، میں نا بزنس کروں گا. بزنس کون سا بزنس؟ کیسا بزنس؟ کیا بزنس؟ بزنس کا رنگ روپ بدل چکا ہے. تیل بیچنا، صابن بیچنا، ٹوتھ پیسٹ بیچنا کبھی بزنس رہا ہوگا، اب وہ بزنس نہیں ہے. تو یہ بزنس جو ہے اس کا رنگ روپ اب بالکل بدل چکا ہے. کیوں؟ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو روایتی بزنس ہیں اس میں آج معاملات کیا ہیں سن لیجیے. میں نے کہا کبھی وہ بزنس رہے ہوں گے، اب نہیں ہے. دو باتیں کہ اگر کسی بزنس میں جب کبھی کمپٹیشن، مقابلہ ہوتا ہے تو وہ بزنس کہیں کا نہیں رہتا. کیا ہوتا ہے؟ میں اس کی مثال دوں گا، دو مثالیں دوں گا اس تعلق سے. تمل ناڈو کے کئی علاقے ہیں، وہاں پر مسلمانوں کے بڑے بڑے بزنس ہیں ٹینریز کی، یعنی چمڑے کے کارخانے. سب کروڑ پتی لوگ، چمڑے کے کارخانے، اس کے روایتی بزنس. وہاں بچے ان کے بیٹھ رہے ہیں، کسی قسم کی کوئی ان کو دقت نہیں ہے، اور وہ بزنس جو ہے وہ ہو رہے ہیں. ہوا یہ 7-8 سال پہلے جو ہے وہ مقابلہ آرائی شروع ہوئی. وہاں پر مقابلہ آرائی میں یہ ہوا کہ چائنا کا چمڑا آ گیا، آرٹیفیشل چمڑا جو اصل چمڑے سے زیادہ سستا، اچھا اور کفایتی. مقابلہ ایسے ہو گیا کہ وہ ٹینریز جو تھے، وہ جو چمڑے کے جو کارخانے تھے، ان پر خزاں چھا گئی. دوسری مثال دوں گا میں ہمارے شہر ممبئی کی. ممبئی میں مسلمانوں کا سب سے بڑا بزنس ہے، وہ ہے ماربلز کا، ٹائلز کا، گرینائٹ کا. سب کروڑ پتی لوگ. بدقسمتی سے چائنا کا ماربل بھی آ چکا ہے، گرینائٹ بھی آ چکے ہیں چائنا کے. جب یہ مقابلہ ہوتا ہے تو یہ جو روایتی بزنس، خالی اس تجوری کے پاس، گلے کے پاس بیٹھنے کا حساب لکھنے آ گیا، بہت ہو گیا، چل میرا لڑکا جو ہے وہ بزنس مین ہو گیا. یہ اب روایت چھوڑ دیجئے ذہن سے. مقابلہ آرائی میں کوئی بھی بزنس آج ٹکتا نہیں ہے. ایک نسل سے دوسری نسل میں جاتا ہوگا لیکن تیسری نسل میں نہیں جائے گا وہ. تو یہ روایتی بزنس کا یہ معاملہ ہوتا ہے. نمبر 2، روایتی اس بزنس میں جب بٹوارا ہوتا ہے تب ہر بزنس کا قد بہت چھوٹا نظر آتا ہے. میں اس کی ایک مثال دوں گا. بٹوارا ہونا اور اپنے آپ میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ بٹوارا نہ ہو اس لیے بچے کم ہوں، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. بچے اگر زیادہ بھی ہیں، 2-3 کے بجائے اگر 7-8 بچے بھی ہیں، اللہ رزاق ہے، اللہ رزق دینے والا ہے ان کو. لیکن
वो जो बच्चे जिसके हैं 5, 6, 7 बच्चे जो भी हैं, उसके बाप ने जो है वो अपने शऊर का इस्तेमाल न करना, उसने एक्टिव न रहना और उनके रोजी रोटी के लिए बाहोश और बाखबर होकर कोई सही इंतजाम न करना, ये अलबत्ता बिल्कुल हिमाकत में गिनी जाएगी बात। हम बात कर रहे थे कि जब बंटवारा होता है तो क्या होता है। मुंबई के एक इलाके में, मुंबई 9 के इलाके में एक साहब की एक हार्डवेयर की दुकान थी, 10 बाय 10 की दुकान, 10 फीट बाय 10 फीट। 3 बेटे उनके, तीनों में से एक को भी नहीं पढ़ाया। क्यों? वो हिसाब आता है, कितना माल गया, कितना माल आया, कोई जरूरत नहीं, हिसाब तो आता है उस बच्चे को, कोई नहीं पढ़ाया। तीनों बेटे देखते ही देखते बड़े हो गए, बंटवारा हो गया, 10 बाय 10 की दुकान का बंटवारा हो गया। हर एक के हिस्से में आई 3-3 फीट का गाला। तो तस्वीर कीजिए उन दुकानों का, 3-3 फीट के गाले में। अब ये तीनों भाइयों ने कुछ पढ़ा लिखा कुछ नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है। तीनों भाई जो हैं वही चीज बेच रहे, क्या? हार्डवेयर बेच रहे। लेकिन अब की बार कहां बेच रहे? वो तीनों भाई दुकान के बाहर खड़े होकर बेच रहे, आवाज लगा, आओ भाई आओ भाई आओ भाई, ऐसे कर कर बेच रहे। जरा ये सोचिए कि उन तीनों भाइयों ने भी अगर अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया तो उनके बच्चों के हिस्से में क्या आने वाला है? 1-1 फीट का गाला आने वाला है कि 1-1 फीट की रिप आने वाली है? क्या आने वाला है उनके हिस्से में? जरा सोच लीजिए। तो मालूम यह हुआ कि जब बंटवारा होता है तब फैमिली बिजनेस कुछ वक़्त नहीं रखता, कोई इज्जत नहीं रखता। जब मुकाबला होता है, कंपटीशन होता है, तब भी ये होता है। तो आप बिजनेस किसे कहते हैं सुन लीजिए, तिजारत किसे कहते हैं, बिजनेस किसे कहते हैं। अब बिजनेस कहते हैं आज की तारीख में, उसका नाम है MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसको बिजनेस कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हाथ गाड़ी वाला थोड़ा छोटा मोटा खोखा लगाने का, बांकड़ा लगाने का मुंबई की जबान में, वो बिजनेस नहीं है। ये कारपोरेट बिजनेस करते हैं आप, अगर आप MBA करते हैं तो। अब इससे आपने क्या सबक ले लिया? इसका मतलब यह हुआ कि अब बिजनेस का हर रास्ता स्कूल और कॉलेज से होकर ही जाएगा। आपके बच्चे स्कूल और कॉलेज छोड़कर, सिर्फ स्कूल नहीं कॉलेज भी जाना है उसको, स्कूल और कॉलेज छोड़कर अगर वो आपको ये झांसा देते हैं कि हम बिजनेस करेंगे, यस करेंगे। स्कूल और कॉलेज छोड़कर आपके बच्चे एक ही बिजनेस कर सकते हैं, क्या है? पानी पूरी और भेलपूरी की दुकान लगा सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते। और जैसे ही पुलिस की गाड़ी आएगी भागेंगे, सिर्फ यही कर सकते हो। तो अब बिजनेस का हर रास्ता स्कूल और कॉलेज से होकर ही जाता है। इसलिए MBA इसको बिजनेस कहते हैं। और ये ऐसी चीज है कि वो बिजनेस टिकेगा, निभेगा, वक्त और हालात का मुकाबला करेगा। उसमें वो दमखम मौजूद है, क्योंकि यहां पर आप रूटीन तरीके से भेड़ चाल की तरह से नहीं जा रहे हैं। आप आंखें बंद करके वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। आपके पास हुनर है। आप जो हैं वो ऐसे कोई मामूली चलते फिरते बिजनेस के मालिक नहीं है, बल्कि उस MBA के जरिए से आपको एक तकनीक मिली है कि कैसे उस बिजनेस को कामयाबी से आप चलाएंगे। तो यहां पर मैं अभी 2 बिजनेस के नाम लिया, लेकिन ऐसे 20 बिजनेस में हमारे लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं। कोई जरी का काम कर रहा है, अब 1-2 नस्ल हो गई जरी का काम करते हैं। अब तो उनको समझना चाहिए, जब मशीनरी आ चुकी है, मशीन आ चुके हैं, अब ये जरी का काम कितना टिकेगा? कई किस्म की छोटी मोटी चीजें, भाई ये मैकेनिकल चीजें थी, फिर नट बोल्ट हम बना रहे हैं, अब मैकेनिकल की जगह अब इलेक्ट्रॉनिक ले रही है। तो जाहिर है कि उस इलेक्ट्रॉनिक से वाकफियत उसको होनी जरूरी है। MBA के कई ऐसी चीजें हैं कि जिसके जरिए से ये जदीद उलूम जो हैं उससे वाकफियत उन्हें हो सकती है। इसलिए ये रिवायती जो कारोबार हैं, जो बिजनेस हैं, ये वक्त के साथ साथ नहीं चल सकते। आपके बच्चे जो आपको कह रहे हैं कि हम कोई बिजनेस करेंगे और उस झांसे में आप आ रहे हैं,
اور آپ کو پھر کوئی ہوائی باتیں کہی جا رہی ہیں کہ وہ بزنس سے بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے. یہ پڑھائی سے بھاگنے کے لیے آپ کو کہہ رہے ہیں. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں. کال سینٹرز کا ایک بڑا بوم تھا, ہم اس وقت کہا تھا کہ ایک ببل ہے, ایک بلبلا ہے, کبھی پھٹ جائے گا, اور وہی ہوا. کئی لوگ ہمارے جو ہیں وہ چھوڑ چھاڑ کے اس کی طرف چلے گئے تھے کہ یہ بڑا کاروبار ہے. اس سے جڑے ہوئے کئی لوگ گاڑیاں لے رہے نہیں, اور ان کو کرائے پہ دے رہے, بھاڑے پہ دے چلانے کے لیے. یہ نہیں سمجھ رہے کہ کال سینٹر والے وہ کروڑ پتی لوگ ہیں, وہ خود کی گاڑیاں کیوں نہیں خرید رہے. وہ اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ مینٹیننس, ڈرائیور, یہ چیزوں میں کیوں پڑنے کا. وہ جیسے ہی ہو جائے گا, وہ جو خرچہ آئے گا دیکھا جائے گا, وہ خود دیکھے گا. ابھی اگر ہم اس کو 10,000 مہینے کو دے رہے ہیں, وہ گاڑی میں کچھ کام آیا تو 40-45,000 کا بل بن جائے گا. وہ گاڑی کا جو غریب مالک ہے بیچارہ ڈرائیور, وہ بھگتے اس کو. کیسے کیسے بزنس, مشروم کے بزنس آئے تھے کہ اس سے جو ہے مشروم سے یہ قسم کے یہ ہوتا ہے. تو یہ جو روایتی بزنس ہیں, جو تجارت ہے, یہ وقت کے ہواؤں کا, تلاطم کا, ان کے جو طوفانی آندھیاں ہیں اس کا مقابلہ نہیں کر پاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں. یہ بزنس کے اصلی رنگ روپ, اس کے تعلق سے ہماری بات جاری رہے گی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ورتل القرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روشنی علم کی, اس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ علم, تعلیم, اس کو چھوڑے بغیر اگر آپ کے بچے بزنس کی بات کر رہے ہیں تو نمبر 1 پڑھائی سے بھاگنے کے لیے کر رہے ہیں, آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں, آپ کو بڑے بڑے خواب دکھا رہے ہیں. وہ ابھی جھانسا دینے میں وہ آپ کے باپ بن گئے ہیں اور کچھ نہیں ہے. اس لیے ان چیزوں کو, ان جھانسوں کو سمجھنے کا ہے اور ویسے آگے بڑھنے کا ہے. یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ MBA کی بات جو کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک نالج آتا ہے کہ کس طریقے سے آپ کوئی بزنس کو رن کریں گے, چلائیں گے, کس طریقے سے اس سے کون سے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں اس کا آپ کو نالج ملتا ہے. آپ ایک ہی چیز لے کے نہیں بیٹھتے بلکہ مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہیں اس کے نالج کی آگہی, واقفیت آپ کو ہو جاتی ہے. آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو کسی کمپنی میں جو پروڈکشن ہو رہا ہے اس کے بعد میں آگے اگلا مرحلہ جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن ہے, مارکیٹنگ ہے, بیچنا ہے, ریٹیل ہے, کیا ہے, کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ کا مال وہاں تک پہنچے گا. صرف یہی نہیں, یہ جو مال کے تعلق سے بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ کوئی بھی آرگنائزیشن, کوئی بھی تنظیم چلانے کے لیے آپ کو جو درکار نالج ہے وہ ان اداروں میں, MBA کی ان کورسز میں, انسٹیٹیوٹس میں آپ کو ملتا ہے. کیسے بڑے بڑے آپ ڈیسیجن لے سکتے ہیں, اس کے لیے ٹائم مینجمنٹ کیا ہے, اس کے لیے کرائسس مینجمنٹ کیا ہے, اس کے لیے سٹریس مینجمنٹ کیا ہے, یہ آپ کو نالج ملتا ہے. اس لیے ان کو ان نالج سے ہی حاصل کرنا پڑتا ہے. یہ MBA کی ڈگری, یہ آرٹس گریجویٹ بھی کرتا ہے, سائنس کا بھی گریجویٹ کرتا ہے, انجینئر بھی MBA کرتا ہے تاکہ کسی انجینئرنگ کمپنی کو وہ بخوبی چلا سکے. اور یہ فرق کتنا پڑتا ہے, ایک انجینئر صرف انجینئر رہ سکتا ہے, جیسے اس نے MBA کر دیا وہ اس کا چانسز ہیں آج نہیں تو کل اس کمپنی کا یا اس ڈپارٹمنٹ کا وہ مینیجر ضرور بن جائے گا, اس کو ہیڈ ضرور کرے گا. یہ چیز ان کو مل رہی ہے ان کورسز کے ذریعے سے. حتیٰ کہ میں نے کہا کہ ایون ڈاکٹر بھی MBA کرتا ہے کہ ایک ہاسپٹل, ایک نرسنگ ہوم, اس کو وہ کامیابی کے ساتھ میں کیسے چلائے, جو لگی باندھی جو چیزیں ہیں اس کے تعلق سے مینجمنٹ کی, ان کو وہ کیسے پورا کرے. یہ چیزیں ان کو وہاں پر سیکھنے کو ملتی ہیں جو اور کہیں سیکھنے کو نہیں مل سکتی. جو روایتی چیزیں ہیں ان کو آپ نہیں سیکھ سکتے ہیں اپنے گھروں میں. اس کے لیے یہ جو انسٹیٹیوٹس ہیں یہاں سے کیے ہوئے کورسز یہی کام آتے ہیں. مطلب یہ کہ یہ MBA, یہ مینجمنٹ کی ڈگریز, یہ بزنس مینجمنٹ کی ڈگریز, یہ ڈپلوماز
उनके जो चीज़ें हैं, उनका नॉलेज, उससे आप एक कॉरपोरेट बिजनेस, एक शानदार, एक बावकार बिजनेस कर सकते हैं। और ये छोटे मोटे बिजनेस करने का चलन जो है वो मुस्लिम समाज से निकलना चाहिए हमेशा के लिए और ख़त्म हो जाना चाहिए। हम बात कर रहे थे कि तिजारत का अपना रंग रूप कैसे बदल चुका है और अब नए रंग और रूप में तिजारत कैसे आ चुकी है, इसके ताल्लुक से हम बात कर रहे थे। आम तौर पर पूरे मुल्क में जो राय सिस्टम है वो ये है कि ये 2 साल का फुल टाइम कोर्स होता है। उसके लिए क्या होता है कि ग्रेजुएशन के बाद आपको एग्जाम से गुजरना पड़ता है, एक मरहला होता है। एग्जाम जो है, एक है कैट या सीमैट। इसके अलावा दूसरे ऐसे जो ऑटोनोमस जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके अपने भी एडमिशन्स के टेस्ट होते हैं। ये जो एग्जाम होता है इसकी तैयारी मैं अक्सर स्टूडेंट से कहता हूं कि वो अपने ग्रेजुएशन के 3 साल, जैसे आपका FY, SY, TY जो 3 साल हैं, उनमें रोजाना 1-1 घंटा कीजिए तो आपको बेहतरीन इंस्टीट्यूट मिल जाएगी। MBA आप कहां से करते हो अहमियत रखता है, कहीं से भी करके फायदा नहीं है, क्योंकि आज 20 ऐसे खुल गए हैं इंस्टीट्यूट्स जिनमें अच्छे फैकल्टी नहीं है, अच्छे स्टाफ नहीं है, अच्छे टीचर्स नहीं है, उनका कोई स्कोप नहीं है, उसकी प्लेसमेंट नहीं है, तो वहां से करके कुछ फायदा नहीं है। इस एग्जाम का फॉर्मेट बताऊं जल्दी से आपको मैं कि इसके लिए एक होता है रिटन टेस्ट, दूसरा होता है GD या ग्रुप डिस्कशन और तीसरा होता है इंटरव्यू। रिटन टेस्ट में यहां पर जो है वो 4 टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन जो होता है वो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी ज़हनी आजमाइश। दूसरा जो होता है वो है इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट यानी अंग्रेजी जुबानदानी। तीसरा होता है वो है एरिथमेटिक या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और चौथा है जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज। ये 4 टाइप के टॉपिक्स पर जो है वो सवाल पूछे जाते हैं। जो अक्सर सवाल जो हैं वो MCQ टाइप के होते हैं। MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एक सवाल है, उसके जो है वो 4 ऑप्शंस हैं, 1 सही है 3 गलत, तो कैसे पहचानने का ये तरीका होता है। इसके GD में एक टॉपिक दिया था, उस पर आपको डिस्कशन करने का रहता है खुलकर। और इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू देखा जाए तो बता दो कुछ होता नहीं है सिवाय इसके कि आपका अब तक का जो एकेडमिक रिकॉर्ड या परफॉर्मेंस है उसको चेक किया जाता है, उसको देखा जाता है कि आपका रिकॉर्ड जो है अब तक का एकेडमिक वो कितना अच्छा था और कितना सही था, उसको जो है वो देखा जाता है ना। ये इस चीज का एक फॉर्मेट होता है। इसके लिए अगर ग्रेजुएशन के पहले ही साल से अगर आप रोजाना 1 घंटा हर एक के पास रहता है, मैं कितने भी बड़े दावा करूं, मैं बहुत मसरूफ हूं, मेरा भी शायद 1 घंटा रोजाना कहीं ना कहीं बेकार चला आता होगा जो मुझे मालूम नहीं पड़ता है। वो 1 घंटा हर एक के पास रहता है। अगर वहीं से जहन बनता है तो बेस्ट इंस्टीट्यूट में आपको दाखिला मिल सकता है। फुल टाइम जो MBA जो है वो करने में फायदा है। बात रही पार्ट टाइम की या कॉरेस्पॉन्डेंस की। पार्ट टाइम में जो MBA कोर्सेज होते हैं नॉर्मली उसको PGDB हम कहते हैं, यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। अब जब कहीं पर कोई वैकेंसी में अगर MBA फुल टाइम वाले अवेलेबल हैं तो जाहिर है PGDB वाले को चांसेस नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर उनके पास ज़्यादा तजुर्बा है, ज़्यादा नॉलेज, तो अलग बात होती है। लेकिन यहाँ पर जो PGDB जो कोर्सेज जो होते हैं वो लोग जो पहले से एम्प्लॉय हैं, पहले से कहीं सर्विस कर रहे हैं, मुलाजमत कर रहे हैं, उनके पास एक टैग चाहिए डिग्री का या डिप्लोमा का, तो उनके लिए नॉलेज बढ़ाने के लिए भी, उस टैग के लिए भी ये जो है काम आते हैं। जो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज जो होते हैं मैं उसके फेवर में नहीं हूँ। ये कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज करके घर बैठे बैठे आपको मेडिसिन का, इंजीनियरिंग का और मैनेजमेंट का नॉलेज नहीं मिल सकता, और मिलता भी है तो समझिए सतही नॉलेज है, ऊपर ऊपर का नॉलेज है, इन डेप्थ नॉलेज कभी नहीं मिलेगी, तो उससे कुछ फायदा नहीं होता है। इसलिए कई लोग से मैं कहता हूं कि अगर आप ग्रेजुएशन के बाद में कोई 1-2 साल आपको जॉब करना है, घर की हालत की वजह से किसी बिना पर या एक्सपीरियंस के लिए लीजिए, लेकिन बाद में पूरी हिम्मत करके, ताकत करके वो जॉब को छोड़िए 2-3 साल के बाद में। तब ये मैं सोचिए कि मुझे 25,000 हर महीने को मिलते हैं, यानी साल के जो हैं वो इतने मेरे ये होते हैं, जाते हैं लगभग 3 लाख रुपए यहाँ पर मेरे ज़ाया हो जाएंगे, 2 साल में 6 लाख। ये सोचिए फ्यूचर आगे इतना अच्छा है कि अगर आप जब ये पूरा करके कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो 25,000 के बजाय शुरुआती सैलरी ही आपकी 1 लाख की हो जाएगी।
تو वहां आपका फायदा है। लेकिन लोग नहीं, सिक्योरिटी भाई जॉब पक्का है, फिर बढ़ने वाले 2-2 हज़ार पाए, ऐसा नहीं होता। तो जॉब छोड़कर भी आप MBA करते हैं तो फायदे में रहे। अगर एक बहुत इस्टेब्लिश बिजनेस है जो वाकई उसकी बुनियादें मजबूत हैं, ऐसा नहीं कि चलते आ रहा है दादा से अब्बा से तो उसी को लेके चल रहे हैं, उसकी वाकई बुनियादें मजबूत हैं और उसी में अगर आप जाते हैं तो फायदा उसका ये होगा कि वो तजुर्बा जो है वो आपको मिल सकता है, जो दादा का था, जो अब्बा का था, कस्टमर जोड़ने का, उनके साथ अच्छे रहने का, अपनी चीज़ों को बेचने का, उनसे जो है वो वाकफियत रखने का, सारी ऊंच नीच सारी चीज़ें उससे, तो वो जो नॉलेज गेनिंग प्रोसेस के ये 5 साल कम से कम आपके बच जाते हैं फैमिली बिजनेस में। तो ये फैमिली बिजनेस का ये एक फायदा है। लेकिन 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 आप ये चेक कर लीजिए कि उसकी बुनियाद कैसी है उस बिजनेस की। वो जो अभी नया कंपटीशन जो आएंगे उसके उन हवादिस का, उन तूफानों का मुकाबला करने की ताकत सकत उस बिजनेस में है नहीं है, और अगर नहीं है तो स्विच ओवर हो जाइए। कई बार बच्चों से कहता हूं मैं कि बच्चे ये काबिल हैं, सब कुछ हैं, नहीं मैं क्या करूं पढ़ के, वो तो बिजनेस तो गले बैठने का है, पैसा गिनने का है, क्या करने का बैठ के ऐसा। मैं उनसे कहता हूं कि आपका अब्बा का बिजनेस है, अच्छी बात है, वो अपनी ये कायम है, कहीं भागे नहीं जा रहा है, और रहने दीजिए। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप अपनी इंटरेस्ट से कोई डिग्री कोई चीज हासिल करते हैं, नहीं घूम फिर के वहीं जाने का है, घूम फिर के जाओ वहीं पर, लेकिन अगर कुछ ऊंच नीच हो गया तो आपके पास अपनी कोई डिग्री होगी, कुछ क्वालिफिकेशन होगी, उसके बुनियाद पर आप अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर पाएंगे। और अगर वो नैया भी डूब गई तो आप भी डूब जाएंगे। इसलिए खानदानी बिजनेस होते हुए भी नई नस्ल ने अपने अपनी डिग्रियां, अपने अपने नॉलेज और अपने अपने बिजनेसेस खड़े करने जरूरी हैं। मैं चाहूंगा कि इस ताल्लुक से अगर आपके कुछ सवालात हों तो वो सवालात भी सामने आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। MBA की इंस्टीट्यूट कौन सी अच्छी है, ये कैसे पहचाने? ये MBA के इंस्टीट्यूट बहुत सारे हैं, जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें आपको दाखिला मिलने की कोशिश करनी चाहिए। MBA के इंस्टीट्यूट्स कौन सी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं वो भी अहम है, उनका अपना पिछला ट्रैक रिकॉर्ड क्या है वो इम्पोर्टेंट है। कोई डीम यूनिवर्सिटी वाले हों, वो कितना ही बताएं हमारे इतने जो है वो प्लेसमेंट का रिकॉर्ड है, ये है वो है, उस पर यकीन न करें। इसलिए ऐसे राइज इंस्टीट्यूट्स होते हैं हर फील्ड के, चाहे मेडिसिन के हों, चाहे इंजीनियरिंग के हों, चाहे मैनेजमेंट के हों, उनको आपको अपनाना चाहिए। और यूनिवर्सिटी कौन सी है ये भी आपको देखना चाहिए, वहाँ फैकल्टी कौन सी है, कैसा पढ़ाया जा रहा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, प्लेसमेंट का उनका रिकॉर्ड क्या है, ये देखकर ही आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो MBA के इंस्टीट्यूट के लिए आपके जो CET या CMAT या CAT का जो एग्जाम होता है उसमें आप कितनी बेहतरी उसमें करेंगे, उतने बेहतर इंस्टीट्यूट में आपका दाखिला मिल जाएगा। अगर आपके मार्क्स कम हो गए तो छोटी इंस्टीट्यूट में, अगर अच्छे मार्क्स मिले तो इंशाल्लाह बेहतरीन इंस्टीट्यूट में आपका दाखिला हो सकता है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अल्लाहु या रब्बी या अल्लाह, अल्लाहु या